آپ کو بتائیں فیصل آباد کے ہر چوک چوراہے پر ہوگی اب نظر 8,000 کیمروں سے نگرانی ہوگی فیصل آباد سیف سٹی منصوبے پر کام شروع 4 ارب مختص ڈی آئی جی آئی ٹی ایس این یونس ڈی آئی جی سیف سٹی لاہور کا عمران خان کا دورہ فیصل آباد میں جرائم ہوں گے کم مجرم دندناتے نہیں پھریں گے 7 سال سے التوا کا شکار منصوبے کی آخر سنی گئی سٹی پروجیکٹ پر کام کا آغاز کر دیا گیا سیف سٹی کے لیے 4 ارب روپے مختص فیصل آباد شہر میں 8,000 کیمرے نصب ہوں گے ڈی آئی جی آئی ٹی ایس این یونس ڈی آئی جی سیف سٹی لاہور کا عمران خان نے فیصل آباد کا دورہ کیا ڈی آئی جیز نے سی پی او کے ہمراہ کیمروں کی تنصیب کے لیے شہر کے مختلف مقامات کا جائزہ لیا حکومت پنجاب کے اعلان کے بعد سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے 2 ڈی آئی جیز نے فیصل آباد کا دورہ کیا سی پی او عثمان اکرم گوندل نے سیف سٹی پروجیکٹ بارے ڈی آئی جیز کو بریفنگ دی فیصل آباد سیف سٹی پروجیکٹ 7 سال سے التوا کا شکار تھا مہنگائی میں اس تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا ایپ کا ملازمین تنخواہوں میں اضافے کے لیے سڑکوں پر فیصل آباد میں سارے کام ٹھپ جنگ میں ایپکا کا تنخواہ اور پینشن میں اضافے کے لیے احتجاج ڈپٹی کمشنر آفس میں دھرنا دیا احتجاجی ملازمین کی جانب سے دفاتر کی تالہ بندی کی مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلامیہ جاری احتجاج میں ڈپٹی کمشنر آفس کے کلرکس کی بڑی تعداد شریک ہوئی ملازمین کا کہنا تھا دیگر صوبوں کی طرح پنجاب میں بھی تنخواہوں میں اضافہ 30% کیا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ پینشن ترامیم واپس لی جائیں نیویارک میں سرکاری ملازمین کا چوتھے روز بھی ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر دھرنا جاری مظاہرین کی نعرے بازی ڈسٹرکٹ ریونیو کوارڈینیشن کونسل ایپکا اور انجمن پٹواریوں کی قلم چھوڑ ہڑتال سے سائلین پریشان ضلعی صدر ریونیو کوارڈینیشن کونسل حاجی زاہد کا کہنا ہے تنخواہ میں کٹوتی لیو انکیشمنٹ اور سالانہ انکریمنٹ ختم کرنے سے ہمارا معاشی استحصال ہوا احتجاج میں اسکیل 1 تا 17 کے سبھی ملازمین شریک ہیں حکومت پینشن اور تنخواہ میں وفاق کے مطابق اضافہ رننگ بنیادی تنخواہ پر کرے صدر انجمن پٹواریاں آفتاب کا کہنا ہے ملازمین کا سالانہ انکریمنٹ بحال کیا ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لے کر سابق کا بحال کیا جائے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے اس وقت تک ہمارا دھرنا جاری رہے گا ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جیسے وفاق اور دیگر صوبوں کی طرح دیگر صوبوں میں رننگ بیسک پے پہ تنخواہ بڑھائی گئی ہے ایسے ہی پنجاب کے اندر رننگ بیسک پے پر تنخواہ بڑھائی جائے اور یہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے قانون سازی کی ہے اس کو فی الفور واپس لیا جائے مظاہرین کہتے ہیں مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا فیصل آباد کے اساتذہ سڑکوں پر مہنگائی کے حساب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اساتذہ کا مطالبہ تنخواہوں میں اضافہ اور پینشن ترامیم کے خلاف فیصل آباد کے اساتذہ بھی سڑکوں پر آ گئے پنجاب کے ملازمین کے ساتھ فضات لاہور میں 4 روز سے جاری احتجاج کے شرکاء سے اظہار یکجہتی کیا ہمارا حق ہمیں دیا جائے اس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں مارکنگ بھی تب تک بند رہے گی ہم نے مارکنگ نہیں کرنی یہ پوری ٹیچر یونین جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے 70% ہماری جو پینشن ہے وہ ختم کر دی ہے اس نئے قانون سے اور اس کی بدقسمتی دیکھیں یہ ہے کہ اس کا جو بنا دیا ہے نوٹیفیکیشن دیا وہ 1 جون سے کر دیا ہے ایل پی آر ان کی لیو انکیشمنٹ اور ان کی پینشن پر ڈاکہ ڈالا ہے انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے اساتذہ نے احتجاج کے طور پر تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پیپروں کی چیکنگ بند کر کے مارکنگ سینٹرز کا بائیکاٹ کر دیا لیبارٹری اسکول جیل روڈ اور گورنمنٹ گرلز اسکول بوانا بازار میں قائم مارکنگ سینٹرز پر تعینات اساتذہ نے سینٹر بند کر کے چوک گھنٹہ گھر سے ضلع کونسل چوک تک احتجاجی ریلی نکالی استاد پر شفقت کریں اور اس پر نظر ثانی کریں جو ہماری پنشنوں پر زیادتی کی ہے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے ہم آپ کو برا بلا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم ایسے پیشے سے منسلک ہیں استاد ہیں ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے لیکن حق کے لیے بھیک تو مانگ سکتے ہیں نا پورن آج مارکنگ سینٹرز کو بند کیا گیا ہے اساتذہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مارکنگ سینٹر بند ہوں اور رزلٹ لیٹ ہوں لیکن ادھر کسی نے بات کرنا گوارا نہیں کیا ہماری بات سننا گوارا نہیں کیا تو آج پورے پنجاب میں مارکنگ سینٹرز کو بند کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے فیصل آباد کے جتنے مارکنگ سینٹرز تھے یہ لوگ عام نہیں ہے یہ مارکنگ کرنے والے سارے اساتذہ کرام ہیں مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی تنخواہوں لیو انکیشمنٹ اور پینشن میں اضافے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف فیصل آباد روبوٹک سنگھ میں بھی ایپ کا ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال کا تیسرا روز دفاتر کی تالہ بندی دوسرے صوبوں کی طرح تنخواہوں اور پینشن بڑھانے کا مطالبہ ٹوبا ٹیکسنگ میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کی کال پر محکمہ ایجوکیشن کے ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال تیسرے روز میں داخل ہو گئی ملازمین نے دفاتر کی تالہ بندی کر دی اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ساڈا حق ایتھے رکھ کے نعرے فضا گونج اٹھی شرکا کہتے ہیں ہماری تنخواہوں اور مراحت میں وفاق کی طرز پر اضافہ کیا جائے ہم اپنے حقوق تلفی مزید برداشت نہیں کریں گے
हमारा पहला मुतालबा तो यह है कि जो वफाक ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं उस हिसाब से हमें भी मराद दी जाए। हम उस वक्त तक यह एहतजाज करेंगे जिस वक्त तक हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता। लाहौर भी जा रहे हैं, पहले भी गए हैं, तो इस सिलसिले में हुकूमत से मुतालबात हैं कि वफाक की तर्ज पर हमारी तमाम जो नोटिफिकेशन किए गए हैं उसके मुताबिक किए जाएँ। हम ओवरटेक्सिंग से ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुतालबात है तनख्वाह बढ़ाने के वफाक की तर्ज पर, तो हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं वो माने जाएँ और उन पर मनोअन अमल किया जाए मरकज़ की तरह। मुजाहिरीन ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा सिंह। लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी में कमी पर पैरामेडिक्स का एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद में पैरामेडिक्स ने काम छोड़ दिया। DHQ फैसलाबाद पैरामेडिक्स किस ने OPD बंद कर दी, मरीज ख्वार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ ने शोबा बैरूनी मरीजा में लीव इन कैशमेंट और ग्रेजुएटी कम होने के खिलाफ एहतजाज किया, नारे लगाए, तकारीर की। मुजाहिरीन का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत फौरी तौर पर लीव इन कैशमेंट और ग्रेजुएटी कम करने का फैसला वापस ले ताकि इनका मुस्तकबिल महफूज रह सके। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में अस्पतालों की तालाबंदी की धमकी दे दी। पेंशन सारी मिली है, रेगुलर पे उन्होंने 35% बढ़ाई है। हमारा भी हक बनता है कि पंजाब को इस तरह सतेला सलूक क्यों किया गया। हमारी अपील है जनाब वज़ीर आला से, जनाब वज़ीर आज़म से, तमाम हुक्मरान जितने हैं उनसे अपील है कि हमारा हक भी उतना ही दिया जाए जो दूसरों सूबों का हक है। 35% देन सानू रनिंग बेस ते साड़ी जिस तरह अगे रिटायरमेंट होंदी सी उस तरह ही होवे। कोई असी नहीं कैशमेंट घटाउणी चाहुंदे, कोई नहीं वधाउणी चाहुंदे। असी इस हुकूमत अगे अपील करते हैं जिस तरह बाकी सूबियां नू कीता इस तरह क्यों करन डे जे। दूसरी जानिब अस्पतालों में आए रोज होने वाली हड़तालें मरीजों के लिए वबाले जान बन गईं। इलाज मुआवजा के हसूल के लिए आए मरीज ख्वार हो गए। अस्पताल में मौजूद मरीज का कहना था चनियोट से चेकअप के लिए आए हैं, एक्सरे फीस भी जमा करवाई लेकिन हड़ताल के बाइस काम नहीं हुआ। एक और मरीज ने कहा आज ऑपरेशन के लिए वक्त मिलना था मगर हड़ताल के सबब वापस जाना पड़ रहा है। डॉक्टर की पर्ची लेके आए, पर्ची के साथ उन्होंने कहा 400 रुपया दे गए तब होगा एक्सरे। हमने कहा पैसे भी ले लें, डॉक्टर के वार्ड में दाखिल है फिर भी पैसे, उन्होंने कहा पैसे चलेंगे। जब लेकर गए उन्होंने कहा हड़ताल होगी। पैसे उन्हीं के पास है, 500 दिया और पर्ची भी उधर ही है, फिर हड़ताल हो गया। अमीर हमारा उधर बैठा है, उसके साथ डिस्चार्ज बोतल भी है जो उधर लगी हुई है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में रोजाना तकरीबन 3000 मरीज इलाज मुआवजे के लिए रुजू कर रहे हैं। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़हर हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की ज़ेर एहतमाम रैली। रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन चौधरी सरफराज अहमद हुंदल ने रैली की क़यादत की। शुरका ने कंपनी की निजकारी रोकने और तमाम मुलाजमीन को बोनस देने का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन जिंदाबाद। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन जिंदाबाद। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने योम शोहदा रैली निकाली। रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन चौधरी सरफराज अहमद हुंदल ने रैली की क़यादत की। शुरका ने कंपनीज की निजकारी रोकने का मुतालबा किया। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन जिंदाबाद। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन जिंदाबाद। रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हुंदल का कहना था कि बोनस तमाम मुलाजमीन का हक है। लाइन स्टाफ को हिफाजती सामान और बकेट क्रेनें दी जाएं। जान की हिफाजत के लिए सबसे पहली तरजीह बकेट क्रेन होनी चाहिए। डिस्कोज में मामला है कि यार्ड स्टिक रिवाइज नहीं की जा रही। जो पहले से यार्ड स्टिक है उसमें 50% स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से हमारा स्टाफ जो आए दिन शहीद होता है और आए दिन मजदूर होता है। यूनियन के सेक्रेटरी नशर अशात मियां साजिद कहते हैं लाइन मैनों की पे दर पे हिलाकते हुकाम की नाहली है। लाइन स्टाफ की कमी मसाइल पैदा कर रही है। 5 बंदों की जगह पे 1 बंदा काम करने वाला है और अगर ये बर वक्त भर्ती कर ले तो हमारी शहादतों की असल वजह ये है कि भर्ती नहीं हो रही और ज्यादा बंदों की जगह 1 बंदा काम पे जाता है। उसके जाने का वक्त है, आने का वक्त नहीं है। इस वजह से हमारी शहादतें होती हैं। शुरुका का कहना था कि गुज़िश्ता साल की तरह रवा साल भी लाइन मैनों की शहादतों का सिलसिला जारी है। स्टाफ की कमी पूरी करके जानों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। वाना में चिनाब की तबाहकारियां, मोजा साहिल के करीब जमीनी कटाव में तेजी। रिहायशियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा।
भुआना के मकाम पर दरियाए चनाब सैलाबी पानी से बिफर गया। मौजा सामल और अड्डा पठानकोट मेन जंग चनियोट रोड को मिलाने वाली सड़क दरिया बुर्द होने के करीब। सड़क तबाह होने से मौजा सामल का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो जाएगा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बेसर सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। अहले इलाका इंतजामिया के बेहिसी पर फट पड़े। खुले आसमान थले छत छिन जाने की फिक्र भी सताने लगी। हाली तो साडे कोल कोई भी किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आया भी ना कोई भी किसी किस्म की कोई साडी मदद की जाती है। भैया मस्जिद तकरीबन कल पूरी खलोती है। आज अपनी अखी नाल वेख लो मस्जिद जरी भी नहीं जरी भी खलोती है। मस्जिद अद्धा तो ज्यादा हिस्सा जड़ा सैलाब जड़ा है ना वो अपनी लपेट ले लिया। अहले इलाका कहते हैं बंद बांध लिया जाता तो हम नुकसान से बच सकते थे। हम माल मवेशी मलबा और बच्चे लेकर कहाँ जाएं? 400 एकड़ तक जरिया राजी दरिया बुर्द होने से जरिया मुआश भी खत्म हो गया है। करीबन 400 एकड़ जमीन दरिया बुर्द हो चुकी है। काफी घर गिर गए हैं और कल की निस्बत कल आपने देखा जहाँ घर थे और मस्जिद थे वो भी दरिया बुर्द हो चुकी है। हुकूमत और इंतजामिया ने वादा किया था कि हम इसके आपको कोई जगह देते हैं, 5 मरला स्कीम देते हैं, लिस्टें बन जाती हैं, कागजात और डॉक्यूमेंशन तक ये बातें रहती है। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बर वक्त इकदाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भुआना। सैलाब हुआ तो क्या हुआ, शादी भी जरूरी है। खरवाड़वा बाकर जंग का दुल्हा असद अब्बास भवाना से दुल्हनिया सुरैया को ब्याह लाया। सैलाबी इलाके में डूबी बस्ती का दुल्हा बारात में शरीक होने वाले निगरान वज़ीर आला का मशकूर। पसंद की कज़न मैरिज पर जोड़ा मसरूर। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से दुल्हनिया को सलामी भी पेश की गई। खरौड़ा बाकर का दुल्हा असद अब्बास जो भवाना से दुल्हनिया सुरैया को ब्याह कर लाया है। निगरान वज़ीर आला ने दुल्हे को 25,000 रुपए सलामी भी दी। सैलाबी इलाके में डूबी बस्ती के दुल्हा ने निगरान वज़ीर आला के बारात में शरीक होने पर शुक्रिया अदा किया। नो ब्याहता जोड़े ने पसंद की शादी का इजहार कुछ यूं किया। मैंने कहा प्यार से रहना है और कोई घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। नहीं, किसके साथ प्यार से रहना है, असद के साथ या अम्मा के साथ? असद के साथ। असद के साथ प्यार से रहना, अम्मा के साथ कोई नहीं। हाँ भाई ऐसा ही कहा था सुरैया, इसने ऐसे ही कहा है? नहीं, इसने क्या कहा रात? इसने कहा है सबके साथ खुश रहना। सबके साथ खुश रहना, ये जो बड़ी अच्छी बात है जी। आपका बेटा बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। दूल्हे राजा ने शाम में कौन कौन सी बातें की? यही कहा था कि सबके साथ खुशी से रहना। एक तो ये कहा कि असद के साथ खुशी से रहना, कि सास के साथ भी खुशी से रहना है? सबके साथ खुशी से। अच्छा, और इसके अलावा मेहंदी के हवाले से क्या कहा इन्होंने? यही पूछा था कि मेहंदी किसने लगाई है। दुल्हे राजा कहते हैं कि दुल्हनिया को समझा दिया है कि सबसे प्यार और मोहब्बत से पेश आना है। रात को सबसे पहले मैंने जो बात की है वो बस आपने सभी के साथ मोहब्बत से पेश आना है और किससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आप बहुत नरम दिल से रहेंगे। नौजवान जोड़ा अपनी शादी पर बेहद मसरूर नजर आया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से दुल्हनिया को सलामी भी पेश की गई। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झांग। न्यूज़ अपडेट्स आपने मुलाहजा की। यहाँ आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन का वोट के इंदराज कवायद की दुरुस्तगी, अखराज और मुंतकिली वोट की तारीख में तोसी का फैसला। इंदराज वोट, अखराज और दुरुस्तगी वोट की आखिरी तारीख 20 जुलाई मुकर्रर कर दी गई। शहरी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके वोट से मुतालिक तफसीलात हासिल कर सकेंगे। फॉर्म जिला इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर से भी हासिल कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं, शहरी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके वोट से मुतालिक तफसीलात हासिल कर सकते हैं। फॉर्म जिला इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर से भी हासिल किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का वोट के इंदराज कवायद की दुरुस्तगी, अखराज और मुंतकिली वोट की तारीख में तोसी का फैसला। इंदराज वोट, अखराज और दुरुस्तगी वोट की आखिरी तारीख 20 जुलाई मुकर्रर कर दी गई। शहरी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके वोट से मुतालिक तफसीलात हासिल कर सकते हैं। फॉर्म जिला इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर से भी हासिल किए जा सकते हैं। फैसलाबाद में पावर लूम्स पर बुरा वक्त, एक तरफ सनती बहरान तो दूसरी तरफ क्वालिटी पर झगड़े। वस्कॉस की मिलावट कितनी, चेकिंग फैक्ट्रियों में होगी। पावर लूम्स मालिकान ने नए तरीक़ेकार पर मुत्तफिक। पावर लूम्स मालिकान और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की लड़ाई, मंडी में क्वालिटी पर तू तकरार कारोबार मुतासिर करने लगी। पावर लूम्स मालिकान ने लड़ाई खत्म करने के लिए SOPs मुतय्यन कर दिए। आइंदा कपड़े का अर्ज, रेट, वीविंग और क्वालिटी फैक्ट्री में ही चेक होंगी। प्रिंटिंग, डाइंग मिल्स और पावर लूम्स के इख्तलाफात पर पावर लूम्स मालिकान एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक फैक्ट्रियों में कपड़ा उतारने से पहले वेस्कास की मिकदार चेक होगी ताकि बाद में मसला ना बने। चेकिंग के बगैर किसी
किसी नुकसान का जिम्मेदार पावर लूम मालिक नहीं होगा। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे का कहना था कि मसाइल पहले से मौजूद हैं, लेकिन पावर लूम्स मालिकान को नुकसान का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि कसूर दागा बनाने वालों का होता है। कपड़े की जो भी हमारी चेकिंग होगी वो चेकर हजरात ही फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, वहीं के ऊपर एल चेक होगी, वहीं पे कपड़े की क्वालिटी चेक होगी, उसका अर्ज होगा, रीड पिक वगैरह सब चीजें वहीं पे चेक होगी हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे विस्कोस को चेक करने के बाद माल को उतारा जाएगा। जब माल उतर जाएगा उसके बाद हमारा उस माल के साथ ताल्लुक खत्म हो। पावर लूम्स मालिकान के मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की को रिवर्स गियर लग चुका है। कारोबार से वाबस्ता सनतकार पहले ही माली मुश्किलात का शिकार हैं। हम मजीद नुकसान नहीं चाहते। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई का तूफान गरीब के लिए एक और बुरी खबर। आटा महंगा होने पर तंदूर मालिकान की रोटी महंगी करने की धमकी। आटा, गैस, बिजली महंगी, तंदूर मालिकान का भी रोटी की कीमत बढ़ाने का उंदिया। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी इम्तिहान बनने लगी। तंदूर मालिकान ने आटे की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफे के बाद रोटी की कीमत 25 रुपए करने का उंदिया दे दिया। सदर अवामी रेस्टोरेंट व तंदूर मालिकान एसोसिएशन वसीम जबीउल्लाह के मुताबिक आटा 400 रुपए बढ़कर 6000 रुपए मन हो गया है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से लकड़ी जलाना पड़ती है। अब 20 रुपए की रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। 4 घंटे गैस आ रही है, 20 घंटे हमारी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री को गैस नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। और ये 25 रुपए रोटी का अंदिया जो है पहले भी हम मीडिया के तौर से दे चुके हैं। अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये रोटी हम 20 रुपए की सेल करें, लिहाजा ये कुछ दिनों में 25 रुपए रोटी हो जाएगी। तंदूर मालिकान ने इंतजामिया से महंगाई के तनासुब से रोटी की नई कीमतों के तयन का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबाटेक सिंह की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत। चीनी के बाद सस्ता आटा भी गायब हो गया। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया आटा कल आएगा कहकर लोगों को वापस भेजने लगी। टोबाटेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के बाद आटा भी नायाब हो गया। अशिया खुर्दोनोश की किल्लत से मसाइल मजीद बढ़ने लगे। मार्केट में आटा 140 रुपए किलो पर जा पहुंचा। शहरी सस्ते आटे के लिए दरबदर हो गए। खवातीन कहती हैं सस्ते आटे के लिए शदीद गर्मी में किराया खर्च करके आते हैं। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया आटा कल आएगा कहकर वापस भेज देती है। इनका मजीद कहना था कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, मार्केट से महंगा आटा नहीं खरीद सकते। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के तफल तसलियों से गरीब का पेट नहीं भरेगा। अगर सस्ती अशिया मिलनी ही नहीं तो यूटिलिटी स्टोर के नाम पर लोगों को क्यों जलील किया जा रहा है। नहीं मिलता पे आटा, मिलता ही नहीं, इतनी दूरों का आईदा है, मेहनत करके किराए भाड़े ला के आईदा, सौदा कोई मिलता ही नहीं पिया। ना खंड मिलती, ना घ्यो मिलता, ना आटा ही मिलता। गरीब बंदे रोज आउंदे रोज जांदे भाई। नहीं देणगे देंदे क्यों नहीं, रख रख के जमा कीरी रख दिया तो देंदे है नहीं। किहड़ी गल तो नहीं देंदे है। गरीब बंदे एडी दूरों आउंदे नहीं देण दे आटे। शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दोनोश की वाफिर मिकदार में फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबाटेक सिंह। फेस्को अवाम को बिजली सप्लाई के साथ साथ मौत भी बांटने लगी। जंग बाजार के मुतादिद इलाकों में बेहंगम सैकड़ों मीटर और तारें शहरियों और राहगीरों के लिए वबाले जान बन गए। फेस्को की तारें लटकती तलवारें बन गईं। जंग बाजार में बेतरतीब और झूलती हुई बिजली के तारों से कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी और करंट लगने के वाकयात मामूल बन गए। फेस्को की गफलत ने ताजिरों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। ताजिर कहते हैं फेस्को हुकाम हमारी सुनने को तैयार नहीं। अक्सर दुकानों के शटर में करंट आ जाता है। हुकाम काम करने से पहले शायद हादसे के मुंतजिर होते हैं। टेपें भी नहीं लगी हुई भाईजान, तो स्पार्किंग हो जाती है। यहाँ पे तारें तो लाइट बंद हो जाती है, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन लाइट ही नहीं होती। बहुत धमाका होता है इधर। यहाँ पे स्पार्किंग अक्सर होती रहती है। पूरे 6 दिन लाइट नहीं आई, हम बड़े यहाँ पे तंग बैठे रहे हैं, ठीक है। और जो गर्मी की शिद्दत की वजह से गाहक भी खराब हो रहा है, दुकानों में गाहक नहीं है। हमारा मुतालबा है वापडा वाला जो बराए मेहरबानी अल्लाह का खौफ करें, लाइट जो स्पार्किंग हो रही है इसको अच्छी तरह की रिपेयरिंग करें। शहरी कहते हैं फेस्को बिलों की मद में करोड़ों रुपए जमा करता है, लेकिन इंसानी जानों की हिफाजत इसकी तरजीहात में शामिल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। अब हो गया नायाब। हर तरफ बारिश से जल थल एक, लेकिन पीने को पानी का कतरा नहीं, क्योंकि आब हो गया नायाब। मदीनाबाद के इलाके में 2 माह से पानी की किल्लत। शहरी घरों में पानी न आने की वजह से परेशान। फैसलाबाद के इलाके मदीनाबाद में आब नायाब हो गया। इलाके में बारिश तो हो गई, लेकिन 2 माह से पानी की किल्लत का सामना है। घरों में पीने के लिए भी पानी नहीं। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। तकरीबन हमारे 3 माह से ये मसला है रमजान का, ठीक है। तो हमारी किसी ने मतलब एमडी वास ने, इधर लोग जाते भी है वास ऑफिस, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता।
ہم نے ریکویسٹ کی ہے اپنے ایم پی اے جو ایم این اے ہمارے ادھر ہلکے کے, کسی نے ہماری بات پہ مطلب رسپانس نہیں دیا. ٹھیک ہے, ہم ادھر بہت مشکل ہے, لوگ اپنے پیسوں سے خرچ کرتے ہیں, پانی لینے جاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ملتا, بہت تنگ ہے. 4 یا 5 ماہ ہو گئے نے پانی نہیں آتا, ہم بہت شدید تنگ ہیں. دور سے مول لے کر آتے ہیں پانی, 40 یا 50 روپے کی کین, وہ بھی ایک دن میں 2-3 لگ جاتی ہیں. لوگوں کا کہنا تھا کہ اب تو لگتا ہے بارش کا پانی ہی قطرہ قطرہ جمع کر کے استعمال کرنا پڑے گا. پانی نہ ہونے کے سبب روزمرہ امور میں مشکلات کا سامنا ہے. دفاتر جانے میں دشواری پیش آتی ہے. بچوں کو گرمی میں نہانے دھونے اور پینے کے لیے پانی میسر نہیں. 4 ماہ ہو گئے ہیں, پانی کا بہت ایشو بنا ہوا ہے. لوگ اپنے پیسے لگا کے بھی ادھر پانی نہیں صحیح آ رہا, جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. ہمیں وزیر اعظم سے یہی درخواست ہے ایم پی اے سے کہ ہمارے ادھر علاقے کا خیال رکھیں. اہل علاقہ نے ایم ڈی واسا سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ پانی کا نظام فی الفور بحال کیا جائے, ورنہ ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے. کیمرہ مین محمد اشفاق کے ساتھ قدر لیاقت, سٹی 41 فیصل آباد.